Dear students, once again you all are welcome in mathematics class. Today we are going to study about trigonometry. In this session, that is video number 7, volume 7, we are going to have the knowledge how trigonometrical ratios are interrelated with each other. आप सबने हमेशा कभी न कभी अपने लाइफ में ट्रेन में सफ़र किया ही होगा। अगर आप एक कंपार्टमेंट में उठे तो उस कंपार्टमेंट के थ्रू अंदर से ही, इनर साइड से ही आप दूसरे कंपार्टमेंट तक पहुंच सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री भी कुछ खास ऐसी ही है। इफ वी नो वन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो वी कैन कैलकुलेट द रिमेनिंग वन। नाउ आई एम गोइंग टू शो यू द आर्ट how we can represent all trigonometrical ratio in the form of one trigonometrical ratio। आज हम आपको ये बतलाएंगे कि एक trigonometrical ratio में बाद बाकी के बचे हुए trigonometrical ratios को कैसे एक्सप्रेस करते हैं। जब पहला हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री, मॉडर्न ट्रिग्नोमेट्री फॉलो किया था, उस समय हमने आपको ये बात बतलाया था कि क्लास 10 की मैक्सिमम जो ट्रिग्नोमेट्री है दैट रिवॉल्व्स अराउंड राइट एंगल ट्रायंगल। ये जो अपनी ट्रिग्नोमेट्री है, अगर हम ट्रिग्नोमेट्री अगर वर्ड बोलें तो आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट, आपके माइंड में एक कॉन्सेप्ट आ जाना चाहिए दैट देयर इज अ राइट एंगल ट्रायंगल ऑन विच वी आर गोइंग टू स्टडी समथिंग न्यू। लेट अस सपोज दिस एंगल इज गिवन टू बी थीटा। If the angle is given to be theta, one acute angle here is theta, can we calculate, can we understand which side is called perpendicular and which side is called base? I have already explained in the previous video. The angle whichever is given, which we are going to consider, the side opposite to that angle will be perpendicular. It means this will be perpendicular. We all know the longest is called hypotenuse. This is your hypotenuse, and the remaining one is base. This is all about our right angle triangle and the name of the different sides. Now, let us suppose the question is given, express all trigonometrical ratios in the form of tan theta. It means we have to calculate all trigonometrical ratios in the form of tan theta. Then let us suppose tan theta is equal to x. We take tan theta as x. X is any number, may be fraction, may not be a fraction, maybe, it means x is a real number. If I am saying real number, it means what? All the number which you have in your mind, दे ऑल आर रियल नंबर। अभी अब तक जितने भी नंबर्स हम लोग जानते हैं वो सभी क्या है? रियल नंबर है। इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स नंबर का बात थोड़ा हम लोग बाद में करेंगे। नाउ x कैन बी रिटन एज x by 1। 1 is a very ideal number. We can put 1 as a denominator to any number. We all know whenever I say tan theta, जब भी हम बोले आपसे tan theta, तो आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट जाना चाहिए कि tan theta is nothing but it is the ratio of perpendicular to base of a right angle triangle. It means tan theta we can call it perpendicular by base. We can write here perpendicular by base. Now we will compare. यहाँ हम लोग थोड़ा कंपेयर करेंगे। क्या कंपेयर करेंगे थोड़ा ध्यान से देखिए। जो न्यूमरेटर x डिनोट कर रहा है वो राइट एंगल ट्रायंगल का परपेंडिकुलर बन जाएगा और जो डिनोमिनेटर 1 दिखाई दे रहा है वो बेस बन जाएगा। मतलब क्या हुआ? यहाँ के हम लोग नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? के क्यों नहीं मानेंगे हम लोग यहाँ पे? के इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि जो tan थीटा इक्वल टू हमने x लिया है तो x इज अ परफेक्ट नंबर हियर। हमने x को एक परफेक्ट नंबर लिया, इसलिए के लेट करने का, सपोज करने का जरूरत नहीं है। It means from this relation we can say that perpendicular is equal to x unit and base is equal to 1 unit, and we will write base as 1 and perpendicular as x. Perpendicular as x. Now
we have a lovely Pythagoras theorem. And what is that Pythagoras theorem? H square equal to P square plus B square. It means in place of P we write x square and B we write 1 square. H square equal to we write 1 plus x square and H equal to root over 1 plus x square. We have also calculated hypotenuse. So we are putting here hypotenuse as root over 1 plus x square. These all are the calculation how I have shown how to get hypotenuse by the popular Pythagoras theorem. करना क्या है हम लोग को? tan थीटा में सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को कन्वर्ट करना है. अब कन्वर्जन का प्रोसेस हम शुरू कर रहे हैं. पहला नंबर 1 साइन थीटा. अब बोलिए जब भी हम साइन थीटा आपको बोलेंगे तो आपके दिमाग में क्या कॉन्सेप्ट जाएगा कि साइन थीटा और कुछ नहीं बल्कि रेशियो है. रेशियो किसका है? परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो है. वी राइट परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और अपने ट्राइंगल की तरफ देखते हैं. व्हाट इज द परपेंडिकुलर ऑफ द ट्राइंगल? x. परपेंडिकुलर ऑफ ट्राइंगल को हमने क्या लेट किया? x लेट किया. क्या क्यों लेट किया? आई हैव एक्सप्लेन्ड ऑलरेडी हियर. वी कैन राइट x अपॉन हाइपोटेन्यूज एज 1 plus x square. Now sin theta is calculated in the form of x. अब यहां क्या करना पड़ेगा हमको? तो वी ऑलरेडी नो, हम लोग जानते हैं क्या? tan theta we have supposed it to be x. tan theta को हमने कितना माना है? x माना है. It means in place of x we can put tan theta and in place of tan theta we can put x. Here in place of x we are going to put tan theta. This equal to, I will write tan theta upon root over 1 plus tan square theta. Now let us see what a lovely relation here. Sin theta is being expressed in the form of tan theta. If someone asks you, अगर आपसे कोई पूछे how to express sin theta in the form of tan theta, we can easily show this art. Sin theta can be written as tan theta upon root over 1 plus tan square theta. अब अगर sin theta को हमने एक्सप्रेस कर लिया tan theta में, तो क्या cosec theta के लिए नया प्रोसेस शुरू करना पड़ेगा? नो, बिकॉज वी ऑल नो फ्रॉम अवर प्रीवियस नॉलेज. हम लोग पहले से ही जानते हैं. क्या जानते हैं? sin theta and cosec theta they are reciprocal of each other. That's why number 2, no need to derive cosec theta. We can write root over 1 plus tan square theta by tan theta. Cosec theta is also expressed in the form of tan theta. Means क्या मतलब हुआ इसका? कि tan theta के रूप में, tan थीटा के फॉर्म में हमने दो और ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को कन्वर्ट कर दिया. एक का नाम है साइन थीटा, जिसको हम tan थीटा अपॉन रूट ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और दूसरा है कॉसेक थीटा. अब चलते हैं नंबर 3 कॉस थीटा पर. अब जैसे ही तुमको हम बोलेंगे कॉस थीटा, तो तुम्हारे दिमाग में एक आ जाना चाहिए. क्या आना चाहिए? एक कॉन्सेप्ट आ जाना चाहिए. जैसे ही हम बोलेंगे cos थीटा, क्या कॉन्सेप्ट आना चाहिए? कि cos थीटा और कुछ नहीं बल्कि इट इज द रेशियो. रेशियो ऑफ व्हाट? रेशियो ऑफ बेस टू हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल. सो प्राउडली वी राइट बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड दिस इक्वल टू व्हाट इज बेस हियर? सी योर ट्रायंगल. बेस इज 1. वी राइट हियर बेस. आई हैव ऑलरेडी इंडिकेटेड बेस इज 1 upon hypotenuse. I have written hypotenuse root over 1 plus x square. This equal to 1 upon root over 1 plus tan square theta. It means cos theta is also represented in the form of tan theta. हम लोगों ने cos theta को भी tan theta के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया. अब जब cos theta को रिप्रेजेंट कर दिए,
तो अपना मेमोरी को हम थोड़ा सा बैक ले जाएंगे और सोचेंगे कि कॉस का रेसिप्रोकल कौन सा है, कॉस का उल्टा कौन सा है। तो कॉस थीटा एंड सेक थीटा, दे आर अपोजिट ऑफ ईच अदर। इट मींस वी डोंट हैव टू कैलकुलेट सेक थीटा। सेक थीटा को हमको कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, जस्ट रिवर्स इट, √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। एंड लास्ट नंबर 5, अब हम लोग ये देख रहे हैं व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग हियर। हम लोगों ने यहाँ क्या समझा, क्या देखा कि tan थीटा इज गिवन, वी हैव सपोज tan थीटा टू बी x, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट tan थीटा, उस tan थीटा के मदद से हम लोगों ने 4 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को कन्वर्ट कर दिया tan थीटा के फॉर्म में। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जो पांचवा बचा हुआ है वो और कुछ नहीं, tan का ही अपोजिट है। तो tan का अपोजिट क्या होता है बोलो, cot थीटा। तो cot थीटा को तो बहुत इजीली हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा। सी द लवली रिलेशन, what we are observing here, all trigonometrical ratios, sine, cosec, cos, sec, cot, they are expressed in the form of same trigonometrical ratios, tan theta, and tan is already in form of itself. It means all trigonometrical ratios are interrelated, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर एक को हम कैलकुलेट कर लेंगे, एक को जान जाएंगे, तो बाद बाकी के जो रेशियोज हैं उनको जानना बहुत मुश्किल काम नहीं है। हम लोग को ये सब फॉर्मूला मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, नो नीड टू मेमोराइज ऑल दिस फॉर्मूला। करना क्या है हम लोग को, वी हैव टू प्रैक्टिस द आर्ट हाउ टू कन्वर्ट इंटायर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो टू अ सिंगल रेशियो। एक और एग्जांपल हम कोट कर रहे हैं आपको, आप बताइए किसको लें हम, कौन से ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज में रिप्रेजेंट करें हम, किस ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज में रिप्रेजेंट करें, प्लीज टेल मी। लेट अस सपोज आई एम गोइंग टू रिप्रेजेंट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज इन द फॉर्म ऑफ सेक थीटा। मान लेते हैं हम सबको रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं सेक थीटा के रूप में। लेट अस सपोज आई एम टेकिंग, आप किसी को किसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, सीधा आर्ट। Let sec theta equal to y, we write y by 1, y can be written y by 1। अब अगर हम sec थीटा बोल दें तो आप तुरंत मेमोराइज कीजिए कि sec थीटा किसका अपोजिट है, तो cos का। cos का रेशियो आप जानते हैं, क्या जानते हैं आप, cos का रेशियो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज जानते हैं। Some people have curly black hair turning permanently brown, this is your cos based upon hypotenuse। और cos को जस्ट अपोजिट कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, तो we will calculate what, we will calculate sec theta। तो sec theta is nothing but hypotenuse upon base। Here h equal to y and b equal to 1, we put b as 1 and h as y। Now I am going to calculate the value of P। अब हम लोग वैल्यू ऑफ P बाय दिस पॉपुलर एंड ब्यूटीफुल पाइथागोरस थ्योरम, आपको ये भी बतलाएंगे हम, अगर फॉलो करते रहिएगा तब सब मैथ्स का ज्ञान एक दिन में नहीं हो सकता है, कि पाइथागोरस थ्योरम और ट्रिग्नोमेट्री में कितना खूबसूरत रिलेशन है। व्हाट इज ए ब्यूटीफुल रिलेशन बिटवीन पाइथागोरस थ्योरम एंड ट्रिग्नोमेट्री, वी विल लेटर डिस्कस इट। Now we know that h square equal to p square plus b square. In place of h we write y square, this equal to p square and plus 1 whole square. Y square minus 1 equal to p square. It means p equal to root over y square minus 1. We write here root over y square minus 1 as p. P equal to root over y square minus 1. I have written here y square minus 1. Now I am going to calculate, I am going to express all trigonometrical ratio in the form of sec theta. Number 1, sine theta. If I am saying sine theta, then you have a concept.
अगर हम साइन थीटा बोल रहे हैं तो आपको पहले ही एक कॉन्सेप्ट है आपके पास। क्या है वो कॉन्सेप्ट? व्हाट इज दैट कॉन्सेप्ट? है क्या वो कि साइन थीटा इज नथिंग बट परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज p अपॉन h। देन हाउ टू प्रोसीड? व्हाट इज परपेंडिकुलर हियर? रूट ओवर y स्क्वायर माइनस 1 एंड व्हाट इज हाइपोटेन्यूज हियर? दिस इज योर y। देन root over, how to write? In place of y we can put sec theta, sec square theta minus 1 by sec theta. Let us see how beautifully sin theta is being expressed in the form of sec theta. Someone says sin theta and the same thing can be said as root over sec square theta minus 1 upon sec theta. Now if we calculated sin theta, then we can easily calculate cosec theta. What is cosec theta? Cosec theta is just opposite of the sin theta. We can write sec theta upon root over sec square theta minus 1. Number 3, cos theta. What is cos theta? तो cos theta we can easily express. Cos theta को तो हम लोग आसानी से एक्सप्रेस कर सकते हैं। किसके फॉर्म में वी कैन एक्सप्रेस cos थीटा? sec थीटा के फॉर्म में। Why? Because they are reciprocal of each other. We can write cos थीटा this is equal to 1 upon sec थीटा। अब क्या बच गया? 3 तो हम लोग कैलकुलेट कर लिए, 4 तो ऑलरेडी sec थीटा ही है, अब 2 और बच गया tan थीटा। नंबर 4, if I am saying tan थीटा is equal to tan थीटा इज इक्वल टू, जैसे ही हम बोलेंगे आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट आना चाहिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा इज नथिंग बट इट्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एंड व्हाट इज द परपेंडिकुलर ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल? प्लीज सी, परपेंडिकुलर इज रूट ओवर y स्क्वायर माइनस 1 एंड द बेस इज 1। दिस वी कैन राइट रूट ओवर इन प्लेस ऑफ y के जगह पर क्या लिख सकते हैं हम लोग? sec square theta. We can write sec square theta minus 1. It means tan theta is also converted in the form of sec theta. And the last one, fifth one is left is cot theta. Cot theta is nothing. Cot theta बल्कि और कुछ नहीं है. It's a reciprocal. Reciprocal of which? Tan theta. We know tan theta here. We will write root over sec square theta minus 1. I have shown you to express all trigonometrical ratios in the form of sec theta and the previous one was tan theta. Remaining 4 you can do by yourself in the same manner. We can easily. अब what is the utility of this thing? इसकी utility क्या है? आखिर में हमने ऐसा क्यों किया? आप इस आर्ट को बताने का मतलब क्या है? इस आर्ट को बताने का एक यही मतलब है, एक यही मकसद है कि अगर आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का वैल्यू दे देगा और सिंप्लीफाई करने को दे देगा तो आप लोग क्या करेंगे? सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को कैलकुलेट करके और जो सिंप्लीफिकेशन में ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज गिवन होगा उसका वैल्यू हम लोग पुट कर लेंगे। और प्रीवियस जो लोअर क्लास है वहां से सिंप्लीफिकेशन का आर्ट जानते ही हैं, प्लस करना, माइनस करना, इनटू करना और डिवाइड करना, वो करके फाइनल आंसर पुट कर देंगे। नाउ लेट अस सी हाउ टू यूटिलाइज इन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में इसको कैसे हम लोग यूटिलाइज करते हैं। लेट अस सपोज इन ए प्रॉब्लम इट इज गिवन tan theta equal to 3 by 4. In a problem it's given tan theta is equal to 3 by 4. And what is the question? Calculate all trigonometrical ratios. Calculate all trigonometrical ratios. We have two methods. How to calculate all trigonometrical ratios when tan theta or any trigonometrical ratios, the value of any trigonometrical ratios are given. The first one is the triangle method, which we are already discussing here. एक सम्स आपको हम ट्रायंगल मेथड से ही बतलाते हैं, इसके बाद आपको हम ट्रायंगल मेथड प्रीफर करने को नहीं बोलेंगे।
हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का डायरेक्ट आइडेंटिटी यूज करके वी विल कैलकुलेट इट एंड इट्स वेरी इजी। देखिए tan theta equal to 3/4 it's given. Now we all know what is the relation of tan theta and the sides of a right angle triangle. We all know perpendicular upon base. It means the ratio of P upon B is given to us and this is 3/4. Now from our previous knowledge, from our knowledge of रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जो अपने रेशियो और प्रोपोर्शन का नॉलेज है, वहां से P इक्वल टू 3 और B इक्वल टू 4, लेकिन ये करेक्ट नहीं है। दिस इज नॉट करेक्ट। P इक्वल टू 3 एंड B इक्वल टू 4 नॉट करेक्ट। व्हाई नॉट करेक्ट? लेट अस सी। इफ समवन इज सेइंग 6/8, this also equal to 3/4. If someone is saying 30/40, this also equal to 3/4. It means 3/4 represents infinite ratios. 3/4 क्या represent करता है? Infinite ratios को represent करता है। 3/4 here is the simplest one. ये simplest दिया हुआ है। अगर ये simplest नहीं होगा तो there have infinite values which is represented by 3/4. That's why we took here a constant. इसीलिए हम लोग यहाँ क्या लेते हैं? कांस्टेंट लेते हैं। क्यों? क्योंकि जिस समय 6/8 रहा होगा रेशियो, उस समय जो हम लोग कैंसिल कर रहे हैं वो 2 से कैंसिल कर रहे हैं, मतलब k का वैल्यू यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ हम लोग 10 से कैंसिल कर रहे हैं, मतलब k का वैल्यू यहाँ कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। k इज व्हाट? k इज द डिवाइडिंग फैक्टर, दैट इज द मल्टीप्लाइंग फैक्टर of which the common is taken from numerator and denominator both, so that to express it into simplest ratio. simplest ratio में रिप्रेजेंट करते समय जिस नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम लोग कैंसिल करेंगे, उसी को हम लोग यहाँ नहीं मालूम है हमको what was the ratio, so that we got the simplest 3/4, हमने k मान लिया। अब k क्या नहीं होना चाहिए? तो k नॉट इक्वल टू 0, k का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। अब हमारे पास परपेंडिकुलर इक्वल टू 3k एंड बेस इक्वल टू 4k, वी हैव these two values. तो जब हमारे पास ऑलरेडी दो वैल्यूज हैं तो क्या हम लोग थर्ड नहीं हाइपोटेन्यूज नहीं कैलकुलेट कर सकते? वी हैव a popular Pythagoras theorem here. Let us see. I have written already. h square equal to p square plus b square, that is your hypotenuse square equal to perpendicular is 3k whole square plus 4k whole square, and this equal to 9k square plus 16k square h square, or h square equal to 25k square. h equal to, we can calculate very easily that h equal to 5k. It means hypotenuse is 5k, perpendicular is 3k and base is 4k. We have calculated and I have written also in the figure perpendicular to 3k, base 4k and hypotenuse is 5k. अब हमको क्या करना है? We have to calculate all trigonometrical ratios. See, number 1 sin theta. अगर sin theta कैलकुलेट करना है तो sin theta तो हम लोग जानते ही हैं कौन सा रेशियो डिनोट करता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब फिगर में अपना देख लीजिए, परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ? देखिए 3k और हाइपोटेन्यूज कितना दिया हुआ? 5k. वी कैन कैंसल k. क्यों k को कैंसिल कर सकते हैं? क्योंकि हम लोग जानते हैं k नॉट इक्वल टू 0। 0/0 को तो नहीं कैंसिल कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पहले ही मान चुके हैं कि k नॉट इक्वल टू 0, इसीलिए हम लोग हर स्टेप में k को क्या करेंगे? बोलो, कैंसिल कर देंगे। तो जो tan थीटा 3/4 दिया हुआ था उसके हेल्प से हमने sin थीटा निकाल लिया, दैट इज जो 3/5। और जैसे ही sin थीटा निकलेगा इसके बगल में हम लोग कोसेक थीटा निकाल लेंगे, कुछ नहीं करना है, इसको उल्टा कर देना है, 5/3 हो जाएगा। कोसेक थीटा इज ऑल्सो कैलकुलेटेड। नंबर 1 में ही हम ले लिए उसको भी। नंबर 2 cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos थीटा इज नथिंग but it's the ratio of base and hypotenuse. So what is the base? See here, base is 4k. It is very beautifully written here. Base is 4k
and hypotenuse is 5k, we can cancel k 4 by 5. No need to write in each step k not equal to 0. It is understood. Once I have written here, it will be in all step. Now what is the opposite of cos theta? The opposite of cos theta is sec theta, and this equal to 5 by 4. We have calculated. Now number 3, tan theta is given. This equal to 3 by 4. Then the opposite of tan theta, cot theta, no need to calculate 4 by 3. It means we can very beautifully calculate it all trigonometrical ratios when one trigonometrical ratio is given to us. अब हमने पहले ही बोला कि I am not going to prefer this method. क्यों बोला हमने? क्योंकि we are going to study mathematics abroad. हम लोग को मैथमेटिक्स और आगे पढ़ना है, तो हम लोग अपने को ट्रायंगल मेथड तक सीमित नहीं रखेंगे. हम लोग we are not going to confine us on the triangle method. We will use trigonometrical identities to find out all these values. Same sums I am going to show you how to calculate it with the help of trigonometrical identities. Very very easy, and we have to follow only that thing, trigonometrical identities, to calculate such problem. हम लोग को वही करना होगा. क्यों ऐसा करना होगा? क्योंकि वैसे उसको करने से हम लोग की ट्रिग्नोमेट्री का बेस और मजबूत. थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन वंस वी ग्रास्प द आइडिया, इसके बाद इससे भी वो इजी हो जाएगा. तो आप ट्रायंगल को हम मिटाने जा रहे हैं, और आप लोग भी अपने दिमाग से ट्रायंगल मिटा दीजिए, क्योंकि वी आर गोइंग टू कैलकुलेट इट विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी. हमने तो अभी आपको बतलाया, क्या बतलाया अभी, कि अगर एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो मालूम होगा तो वी कैन कैलकुलेट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज. ये करके भी दिखाया. अब बोलिए आपके पास आइडेंटिटी कौन कौन सा है? तो 3 पॉपुलर आइडेंटिटी हमने लिखा था. नंबर 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. नंबर 2 सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. एंड नंबर 3 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. ये तीन ही आइडेंटिटी, जो 3 आइडेंटिटी है, इसी पे पूरा ट्रिग्नोमेट्री हमारा रन करता है. इसको ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं. ऑलरेडी डिस्कस इन द प्रीवियस वीडियो हाउ दिस आइडेंटिटीज आर डिराइव्ड. इस आइडेंटिटीज को हमने डिराइव कैसे किया. अब सुनो, सोचना क्या है इनको. कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो दिया हुआ है? tan थीटा इक्वल टू 3/4. अब देखेंगे कि इस तीनों आइडेंटिटी में tan थीटा कहाँ अपीयर किया है. उस आइडेंटिटी को हम यहाँ लेकर चले आएंगे, यहाँ लेकर आएंगे हम लोग. तो देखो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. इस आइडेंटिटी में tan थीटा का जिक्र हुआ है. इसका मतलब ये हुआ कि हमको इन तीनों आइडेंटिटी में से उस आइडेंटिटी को पिक करना होगा जिसमें से एक का वैल्यू हमको मालूम है. किसका वैल्यू मालूम है? tan थीटा का वैल्यू मालूम है. राइट, वी नो दैट सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. अब कोई बच्चा अगर पूछे, कोई स्टूडेंट पूछे, सर हम लोग यही क्यों लेंगे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, क्यों नहीं हमने साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिया? बच्चा जितना स्टूडेंट है सुन लो, इसको इसलिए लेंगे क्योंकि ये वाला वैल्यू हमको मालूम है, और इसका वैल्यू अगर पुट करेंगे तो ये वाला कैलकुलेट हो जाएगा. अब तुमको ये तो मालूम होना चाहिए कि अगर एक का वैल्यू हम निकाल लेंगे तो दूसरा उसका उल्टा कर देंगे, अपने आप निकल जाएगा. वी कैन राइट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 3/4 होल स्क्वायर इक्वल टू 1. सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस 9/16. 9/16 जानता ही, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16. ट्रांसपोजिशन, उस साइड ट्रांसपोर्ट किए, साइन चेंज. बोलेगा सर यहाँ स्क्वायर क्यों दिए? तो tan थीटा है 3/4, यहाँ tan स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, इसलिए उसका स्क्वायर कर दिए. सेक स्क्वायर थीटा अब सिंपल है, 16 1 जा 16 प्लस 9 25. वैदिक मैथ्स भी फॉलो कर रहा है, इसलिए इतना तो तुम लोग कर ही लेगा दिमाग में. सेक थीटा इक्वल टू रूट ओवर 25/16 एंड दिस इक्वल टू 5/4. सेक थीटा क्या हो गया?
दिस इक्वल टू 5/4 और जैसे ही सेक निकलेगा उसके बगल में हम लोग लिख देंगे cos थीटा हो जाएगा 4/5। सेक कैलकुलेट किए और cos थीटा अपने आप कैलकुलेटेड हो गया, मैंने एक कैलकुलेट किया और दूसरा अपने आप कैलकुलेटेड हो गया। अब बोलो tan थीटा दिया हुआ था, वहां से हमने सेक निकाल लिया और सेक से तो cos निकालने में तो कुछ पूछना ही नहीं है, वेरी इजी। अब क्या बचा, साइन बचा, लेकिन हमारे पास अब बहुत सी जानकारी हो गई। अब हमारे पास tan की भी जानकारी हो गई, सेक की भी जानकारी हो गई और cos की भी जानकारी हो गई। क्या निकालना है, साइन हमें निकालना है। हम देख लेंगे कि 3 हमारे पास नोन हो गया है, अब साइन अगर निकलेगा तो हमारा काम हो जाएगा। तो अब चेक करेंगे कि साइन के संग क्या आ रहा है, cos आइडेंटिटी में साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और हमारे पास ऑलरेडी cos का वैल्यू मालूम है। इसका मतलब कि इस आइडेंटिटी को लेकर के अगर cos थीटा का वैल्यू पुट कर देंगे उसमें तो वी कैन इजीली कैलकुलेट साइन थीटा। वंस अगेन वी राइट, वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4/5 होल स्क्वायर इक्वल टू 1। अब पूछो कोई यहां से कि 4/5 क्यों रखे, तो 4/5 तो cos थीटा का वैल्यू, होल स्क्वायर क्यों किए, होल स्क्वायर इसलिए क्योंकि यहाँ cos स्क्वायर थीटा दिया हुआ था इसलिए होल स्क्वायर किए। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस 16/25, जानते ही हो प्लस से उस साइड जाके माइनस होगा। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 9/25, only sin theta root over 9/25 and this equal to 3/5। sin is calculated और जैसे ही sin theta कैलकुलेट होगा we can write cosec theta 5/3, just reverse। अब सबको हम अरेंज कर देते हैं। नंबर 1 sin थीटा खोजो, इतना दूर में कहा निकालोगे, या 3/5 जस्ट अपोजिट इसके बगल में लिख लो, कोसेक थीटा हो गया 5/3। नंबर 2 cos थीटा ढूंढ लो, देखो जस्ट ऊपर में ही है 4/5, सेक थीटा हो गया तुम्हारा 5/4। नंबर 3 tan थीटा, ये तो गिवन ही था, tan थीटा कितना गिवन था 3/4, जस्ट अपोजिट कर देंगे cot थीटा हो जाएगा 4/3। We have already calculated all trigonometrical ratios। एक बार खाली ध्यान से देखेंगे, हमको लगता है कि we all can understand, we all can do mathematics। अब नेक्स्ट जो वीडियो हम देंगे आपको, उसमें अभी 2 टॉपिक और बच गया है, 2 नहीं 3-4 टॉपिक और बचा है। अब एलिमिनेशन ऑफ थीटा एक बचा हुआ है और एक कैलकुलेशन ऑफ डिफरेंट एंगल्स बचा हुआ है। उस पर पहले हम 2 देंगे, इसके बाद कैलकुलेशन ऑफ डिफरेंट एंगल्स sin 30 cos 30 पे जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।